قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اصول اس قوم کے لیے بنا کے چھوڑے، اگر آج ہماری تمام سیاسی قیادتیں اور نوجوان نسل اس پر عمل کر لے تو پاکستان کی ترقی، سالمیت اور خوشحالی یقینی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ پیارا وطن پاکستان ہمیں عطا کیا ہے، اور آج کئی سالوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 2025 ہمیں کئی شہادتوں اور شہیدوں کی یاد دلاتا رہے گا، وہاں کیونکہ سال کا آخر ہے اور اب ہم کچھ ہی دنوں بعد نئے سال میں شامل ہو جائیں گے، لیکن 2025 پاکستان کی تاریخ میں سنہری لفظوں سے بھی لکھا جائے گا، جہاں پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک سے جنگ جیتی ہے۔ ہم ایک فاتح قوم قرار پائے ہیں دنیا میں، اور آج واشنگٹن میں ایک جزیرے نے یہ تحریر لکھ چھوڑی ہے کہ پاکستان کئی برسوں کے بعد دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی سے یہ ثابت کر دیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ایک اور میگزین فارن پالیسی لکھتا ہے کہ جو ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ہے اس میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا ہے، اور آج اس فتح کا سہرا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کے سر جاتا ہے، کیونکہ ان کی دو ٹوک پالیسیز نے آج پاکستان کو اپنے اس خطے میں اور دنیا میں ایک اہم ترین ملک قرار دلوا دیا ہے۔ الحمدللہ آج یہی میگزین، یہی اخبارات دنیا کے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہترین عسکری حکمت عملی نے وہ اعتماد کئی برسوں کے بعد پاکستان پر بحال کر دیا ہے۔ آج پاکستان کا سی پیک کا دوسرا مرحلہ عالمی سطح پر پھر سے دوبارہ اس بات پر آ چکا ہے کہ اسے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ آج پاکستان نے کئی برسوں کے بعد افغانستان کے معاملے میں دو ٹوک پالیسی کا اعلان کیا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں دو ٹوک فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے افغانستان کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ آج پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ انتہا پسندی کا معاملہ ہو تو اس پر بھی پاکستان نے دو ٹوک فیصلہ لے لیا ہے۔ اب پاکستان اپنی معاشی اڑان اڑنے کے لیے وہ تمام فیصلے کر رہا ہے جو کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے نہیں لیے گئے تھے۔ آج جیسے میں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو وہاں پر اس ملک میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں، دینی طبقے سے تعلق رکھنے والی شخصیات پاکستان کو پھر اپنے ڈومیسٹک معاملات میں گھسیٹ رہی ہیں۔ خدا را جہاں پاکستان دنیا کی نظر میں مرکز بن گیا ہو،
जहां पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्किया और चीन जैसे शराकतदार के साथ मुआहदे किए हों, जहां पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जैसी ऐसी जगह जहां हरमैन और शरफैन हैं, मदीना मुनव्वरा और खाने काबा है, उसके मुहाफिज का किरदार अदा कर रहा है, जहां वो दिफाई मुआहदे कर रहा है लीबिया जैसे मुल्क के साथ, जहां पाकिस्तान के बनाए हुए हथियार अब दुनिया में डिमांड की सूरत इख्तियार कर चुके हों, जहां 2 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान में नजकारी का अमल शफाफ तरीके से नजर आ रहा हो, जहां PIA जो एयरलाइन है उसकी नजकारी का अमल हो चुका हो, जो कि एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान मरकज बना हुआ है दुनिया में, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने साबित किया है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी में अमेरिका के साथ शराकतदारी के साथ उसका अलाई बनकर आगे बढ़ा है। हर वो काम जिससे पाकिस्तान अपने माशी बहरान से निकल सकता है, वो मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के मैगज़ीन्स और अखबारात कह रहे हैं। तो अगर दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी को, पाकिस्तान की बेहतरीन अस्करी सलाहियत को, और पाकिस्तान के जो शराकतदार हैं, जो कि अब नज़र आ रहा है, UAE के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल को दुनिया में जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये इस बात की अक्कासी है कि वाकई पाकिस्तान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली, अस्करी सलाहियत की वजह से और 5 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क को शिकस्त देने के बाद आज इस खित्ते में एक अहम तरीन मुल्क बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से एक ताकतवर मुल्क बन चुका है और उसे दुनिया तस्लीम कर रही है। खुदारा, अब हमें भी तस्लीम कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जो मज़ाकरात को नहीं मानते, PTI के दोस्त, ख़ास तौर पर अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स, जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज़ बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मज़ाकरात बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात हो तो ऐसे लोगों से मज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए जिन्होंने 4.5 साल पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर ही भारी था। आज पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में अपना मकाम बना चुका है, मैं समझता हूं कि पूरी कौम को इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो एक फातेह कौम है, और अब मार्के हक के बाद मार्के मईशत के लिए हम तैयार हैं। और अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह हमने भारत से जंग जीती है, इसी तरह दुनिया से मईशत की जंग जीत लेंगे। और पाकिस्तान में जो 24 करोड़ लोग कई सालों से इस मईशत के सम्राट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इसे ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस ने शहादतें दी, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, हमारे सिविलियंस ने 90,000 से ज़ायद शहादतें दी हैं, और आज इस कौम का नौजवान अपने मुस्तकबिल का इंतज़ार कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी अता करे, आमीन। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2025 बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की
149th बर्थडे पे मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि गवर्नर साहब के साथ अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूँ, कायद आज़म को खराज अकीदत पेश करूँ और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूं। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायद आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ आज मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है क्रिसमस। उस सिलसिले में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हमारी मसीही बरादरी है, बल्कि दुनिया भर के मसीही बरादरी जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा मुल्क अब एक नए साल में जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी 2025 की कामयाबी के बाद 2026 में कुछ दिनों बाद दाखिल होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म यही है कि जो इस मुल्क के लोगों की उम्मीदें हैं उन पे हुकूमत पूरी उतरे, हुकूमत अपने प्रिंसिपल्स को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स को अपनाए, जिसमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है, और उसके साथ साथ वो सब लीडरान जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, उसमें अल्लामा इकबाल, शहीद लियाकत अली ख़ान, जिनकी आखिरी आरामगाह भी इसी जगह पे है, उनको मैं ज़रूर याद करूँगा। और उसके बाद जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने पाकिस्तान की बका के लिए शहादतें नोश फरमाई, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख़ास तौर पे ज़िक्र हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, एटमी क़ुव्वत बनाया, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उसके साथ साथ मैं हमारी जो करंट लीडरशिप है, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, उन सब को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी, और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को, जो अपने आप, जिसको गरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और जो हमेशा पाकिस्तान को एक बुरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। आज के दिन मैं ज़रूर अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों को कहूँगा, जिन्होंने भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं, और उसके साथ साथ फ़लस्तीन में भी जो मज़ालिम 2025 जहाँ पे कामयाबियों का साल था, उसके साथ साथ हमारे लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक अफसोस का मकाम था कि इसराइल की जारियत, इसमें हज़ारों की तादाद में हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई और बहनें शहीद हुए।
उसको हम मौसर तरीके से रोक ना सके। और यही दुआ है कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो के जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं उनका मुकाबला करे और हक पे जो हैं उनका की कामयाबी हो। आपका शुक्रिया जी।